This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. It is the 5th unit of the course MSTE001, and the block is the product control. In the block 1, we have studied how with the help of control chart, how we can control the process. Now the second part is the product control. In this block, we will study how the process we can control. There are many situations. Yes, there are many situations in which the manufacturer or a consumer receive the items from the other supplier. Then he face some problems, that how to control the quality of the product which are received from the other supplier. Second one is that how he or she ensure that the lot contain the minimum number of defectives. It means because क्योंकि हम लोग अब इंस्पेक्शन करके जनरली मैन्युफैक्चरर जो भी कंज्यूमर है वो लॉट को एक्सेप्ट करता है, तो और वो हम करते हैं सैंपल के बेस पे। तो सैंपल के बेस पे वो कैसे इंश्योर करेगा कि जो हम वो लॉट रिसीव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हो। एंड थर्ड इज दैट हाउ कैन एंश्योर द स्पेसिफिकेशन, वो कैसे श्योर करेगा कि जो ये आइटम आ रहे हैं ये डिजायर स्पेसिफिकेशन के हैं या नहीं। तो फॉर दैट Dodd and Roming give the concept of acceptance sampling plan. So what is the acceptance sampling plan? Acceptance sampling plan is the process through which we control our product. Okay. So before the theory of acceptance sampling plan, 100% inspection carried out, and but due to the drawbacks of the 100% inspection, such as the time, cost, labor also, and there are a situation where the items are destroyed under the investigation. So at that time, it is very difficult to conduct 100% inspection. Yeah. So inspection can be made two types: inspection of variables and inspection of attributes. If we inspect the items and we measure the characteristic of the item or unit, then this type of inspection is called the inspection of variable. And second type of inspection, in which we just classify the item or unit as defective or non-defective on the basis of go and no go, यानी overall characteristic उसकी हम देख के on the basis of X we classify the unit as defective or non-defective. So there are two methods for inspection: 100%, in which each unit of the lot is inspected, and in the as a sampling inspection plan, only we inspect a part of the sample, and this is the sampling inspection. Okay, now we come on the acceptance sampling plan. तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान या एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, पहले एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग लेते हैं फिर प्लान के बारे में बात करेंगे। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग is a technique in which we draw a sample from the lot and take the decision of acceptance or rejection of the lot on the basis of the sample. तो अगर हम ऐसा करते हैं कि एक सैंपल लिया और उसके बेस पे ही हम लोट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. Okay, for example, suppose cricket ball supplier lot. Lot means मैंने कल ही बताया था कि lot का मतलब है कि वो ग्रुप जो सप्लायर एक मैन्युफैक्चरर के पास या एक कंज्यूमर के पास एज ए होल भेज रहा है, तो एक ग्रुप को कहेंगे हम lot. तो सपोज कि जो क्रिकेट बॉल सप्लायर है वो 100 बॉल्स एक कंज्यूमर को या एक मैन्युफैक्चरर को दे रहा है. तो ए बायर वांट्स टू इंस्पेक्ट 20 बॉल्स फ्रॉम ईच ऑफ द लॉट. मान लीजिए कि 500 का पूरा बॉक्स बना के दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि हर बॉक्स से 20 बॉल्स वो ले रहा है और उसको इंस्पेक्ट कर रहा है. बिफोर एक्सेप्टिंग द लॉट,
he takes a decision about acceptance rejection of the lot on the basis of the information provided by this sample. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द एक्सेप्टेंस, क्योंकि सैंपल के बेस पे वो डिसीजन ले रहा है कि मुझे ये लॉट एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है. तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान. ओके, नाउ yeah, if when a lot is rejected on the basis of acceptance sampling plan, it does not mean that all unit of the lots are of no use or all units are defective. By the way, एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि हमने मान लीजिए एक सैंपल लिया और उसमें से हमने क्राइटेरिया रख लेंगे कि भाई 20 में से अगर 2 डिफेक्टिव होगी तो वी रिजेक्ट द लोड. तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उस टाइम सैंपल के बेस पे 3 डिफेक्टिव आ गई तो कंज्यूमर ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बाय नॉर्म्स उसने कहा था कि मैं केवल 2 डिफेक्टिव तक लूंगा. अगर 2 डिफेक्टिव तक आते हैं तो मैं वो लॉट को एक्सेप्ट कर लूंगा, अदरवाइज वी रिजेक्ट द लॉट. पर उसमें 3 डिफेक्टिव आए तो ही और सी रिजेक्ट द लॉट. पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सभी यूनिट डिफेक्टिव थी. दैट इट मींस दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ द लॉट हैव बीन. फिर अगर ऐसा रिजेक्ट लॉट जो है रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, each unit of the lot has been carefully examined and the defective items have been either repaired or removed. Thus, the remaining unit in the lot conform to a particular quality level. The rejected units may be sold at a lower price or defects in the units may be removed so that it can be retained. जनरली आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि सेल का माल है, रिजेक्टेड माल है ना, कुछ पे तो स्टैम्प पे लगा होता है रिजेक्टेड. तो उस तरह की लॉट, बाय द वे लॉट रिजेक्ट हो जाता है तब कंपनी उसको वापस अपने वेयर हाउस में बनाएगी तो उसका भी ट्रैवलिंग कॉस्ट जुड़ जाता है. तो फिर क्या करती है कंपनी, अगर बाय द वे लॉट रिजेक्ट हो जाता है तो वहीं पे उसे कुछ कम रेट्स पे उसको वहीं पे सेल आउट कर देती है. तो वो जो रिजेक्टेड लॉट सेल आउट होता है तो उसकी कुछ प्राइस कम करके मार्केट में वो आ जाता है. तो वही कह रहा है कि rejected unit may be sold at lower price of the or defect, और या ऐसा कर सकती है कि वहीं पे ही उसका इंस्पेक्शन करा लेती है और उसमें से डिफेक्टिव आइटम छटवा देती है. डिफेक्टिव को अलग किसी रेट पे चला जाता है और उसमें फिर उसको फिर दोबारा पैक करके वो दोबारा सप्लाई के लिए चला जाता है. फॉर इंस्टेंस द क्लियरेंस सेल और रेडीमेड क्लॉथ्स और शूज आर कैरिड आउट टू सेल दोस आइटम्स व्हिच आर नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन. ठीक है. This is the loss of the producer or manufacturer, which can be prevented if your C maintain the desired quality level. तो कह रहा है कि अगर इस तरह से सिचुएशन होती है तो क्योंकि लॉट तो उसने स्पेसिफिकेशन का बनाया था पर वो रिजेक्ट हो गया, तो इस केस में क्या है मैन्युफैक्चरर को बहुत लॉस होता है. ओके, देयरफॉर मैन्युफैक्चरर शुड बी अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस. ओके, तो अब एक्सेप्टेंस सैंपल प्लान पे आते हैं. तो एन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान इज ए स्पेसिफिक प्लान दैट क्लियरली स्टेट द रूल्स for sampling and the associative criteria for acceptance or rejection of a load. मतलब सैम्पलिंग प्लान तो समझ में आ गया. एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या है कि एक सैंपल लेंगे उसके बेस पे हम लोड को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे. पर सैंपल कितने साइज का होगा, क्या क्राइटेरिया रखेंगे हम कि भाई क्राइटेरिया क्या होगा कि हम सैंपल में से अगर 1 डिफेक्टिव आता है तब लोड को रिजेक्ट करेंगे या 2 डिफेक्टिव आता है तब लोड को रिजेक्ट करेंगे. तो वो सब उसके अंदर मेंशन होता है. तो वो प्लान जिसके अंदर सभी स्पेसिफिकेशन होंगे सैंपल से हम लोग इसको कंडक्ट करेंगे, तो इट इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान. ओके, एडवांटेजेस सेम एज सैम्पलिंग और पॉपुलेशन. एडवांटेजेस सेम आप पढ़ लीजिएगा. एक और बात कह रहा है कि ये वाला 4th पॉइंट देख लेते हैं. इन मेनी केसेस एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्रोवाइड्स बेटर आउटगोइंग क्वालिटी, better outgoing quality in journal. It is seen that and agreed that good 100% inspection removes only 85 to 19 of the defective item. ये कह रहा है कि अगर हम 100% इंस्पेक्शन भी करते हैं तब भी उसमें 80 to 90% ऑफ द डिफेक्टिव आइटम से रिमूव हो पाते हैं. 100% डिफेक्टिव आइटम तब भी रिमूव नहीं हो पाते क्योंकि जब हम 100% इंस्पेक्शन करते हैं तब हम लोग उससे बोर हो जाते हैं. तो कुछ यूनिट्स जो हैं या प्रॉपर हम केयरफुली नहीं कर पाते 100% इंस्पेक्शन, तो उसमें कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स ऑलरेडी चली जाती हैं. तो हाउएवर due to the human error it usually does not reach to 100% mark. In other words, we can say that 100% inspection is not always reliable because it involves too much routine work for the person inspection each and every item. Due to this, defective items may also be labeled as satisfactory and
may also be accepted at the time when those persons are distracted. Hence, an appropriate sampling plan is preferable. मतलब अगर आप 100% भी करते हैं तब भी आपका ये नहीं कि उसमें सभी जो यूनिट्स हैं वो नॉन डिफेक्टिव होंगी। ओके, चलिए अब आते हैं हम टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। तो दे आर, जैसे हमारे कंट्रोल चार्ट टू टाइप्स के थे, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल एंड कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। सिमिलर वे में एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान भी टू टाइप्स के हैं, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर वेरिएबल्स। तो अगर हम सैंपल लेते हैं और उसमें हम जो भी आइटम्स हैं उसका इंस्पेक्शन करेंगे, अगर वहां पर हम इंस्पेक्शन बाय ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, यानी हम जो भी सैंपल में यूनिट सेलेक्ट हुई और उसको हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम मान लो क्रिकेट बॉल का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर क्रिकेट बॉल का ही है, अगर बाय द हम क्रिकेट बॉल की हम डायमीटर को कंट्रोल करने की बात थी, तो डायमीटर मेजर कर रहे हैं या उसका वेट मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर वेरिएबल। या अगर हम क्रिकेट बॉल को जस्ट इंस्पेक्शन के इंस्पेक्शन में जस्ट हम उसको डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की कैटेगरी में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स। आपके कोर्स में केवल एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो बस एक रह गया है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स। चलिए तो हम फिर इस पे आते हैं, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स भी डिफरेंट तरह का है, तो वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स में है, तो एक्सेप्टेंस प्लान इज in which actual measurements of the quality characteristics are not made, but the units or items are as categorized as defective or defective on the basis of go no go gauges are called acceptance sampling plan for attributes. So these plans are of two types. यहाँ पे भी दो तरह का acceptance sampling plan attribute पे two types का है, lot by lot acceptance sampling plan और second one है हमारा continuous production एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो फिलहाल हम ले रहे हैं लोड बाय लोड। लोड बाय लोड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अगर हम लोड बना पा रहे हैं, उसको हम कैटेगराइज कर पा रहे हैं, उसको हम लोड बना के मतलब एक ग्रुप बना पा रहे हैं, या उसको एक पैकिंग में हम दे पा रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे लोड बाय लोड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। अगर हम ऐसे लोड नहीं बना पा रहे हैं तो हम यूज करते हैं हम सेकेंड वाला कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट। ये भी आपके कोर्स में नहीं है, तो बस एक ही बचता है लोड बाय लोड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। ओके, तो चलिए लोड बाय लोड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान लेते हैं। तो लोड बाय लोड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सैम्पलिंग प्लान एंड देयरफॉर आर सिंपली कॉल्ड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स। तो क्योंकि वो सेकंड वाला इतना फेमस नहीं है, ये वाला ज्यादा फेमस है लोड बाय लोड, तो हमने लोड बाय लोड का जैसे मीन की बात करते हैं तो हम एवरेज की बात करते हैं तो मीन बोलते हैं। ठीक है, हम मीन मीडियन मोड नहीं बोलते उसमें, मीडियन वगैरह। तो ऐसे ही एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स अगर बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग यहाँ पे होगा लोड बाय लोड। ठीक, तो सच प्लान आर यूज्ड वेदर द यूनिट्स टू बी इंस्पेक्टेड कैन बी कन्वेंटली ग्रुप्ड इनटू द बैचेस और लोड। ये तभी यूज कर पाएंगे हम जो हमारी यूनिट्स हैं उसको हम बैचेस बना लें या उसके लोड्स बना लें या उसके ग्रुप बना लें। तो in load by load acceptance sampling plan or attributes generally we use the following plans। तो इसमें हमारे 4 plans हैं, सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान्स, मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान और सिक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान। आपके कोर्स में यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी केवल 2 ही हैं, सिंगल सैम्पलिंग प्लान एंड डबल सैम्पलिंग प्लान। मल्टीपल और सिक्वेंशियल आपके कोर्स में नहीं। तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या है, अगर हम लोड को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल सैंपल। ठीक है, सिंगल सैंपल के बेस पे हम उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा वो प्लान होगा सिंगल सैम्पलिंग प्लान। अगर 2 सैंपल के बेस पे हम उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे डबल सैम्पलिंग प्लान। बट इफ वी यूज द मोर देन 2 सैंपल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लोड देन इट इज कॉल्ड द मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान। सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है इन तीनों से। इन सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान द सैंपल साइज इज नॉट प्रीफिक्स्ड। सैंपल साइज प्रीफिक्स नहीं होता। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे तो सैंपल साइज फिक्स है, यहाँ पे सैंपल साइज मान ले 10 का है, यहाँ पे 10 के 2 ले लिए, यहाँ पे मोर देन फर्स्ट 10 का ले लिया, फिर 5 का ले लिया, फिर 3 का ले लिया, जो भी है। पर सिक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान में क्या करते हैं, सैंपल साइज फिक्स नहीं करते। सबसे पहले हम एक यूनिट निकालते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोड को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो फिर हम एक यूनिट और ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे सैंपल साइज फिक्स नहीं हुआ,
यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि जो आउटपुट आया आपका, जो सैंपल के रिजल्ट आए, उसके बेस पे क्या होगा, क्या लोड एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, या फिर हम एक नई यूनिट लेंगे। कभी कभी होता नहीं, डिसीजन नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, नई यूनिट लेते हैं, एक और यूनिट हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे, फिर उसके बेस पे देखेंगे कि क्या हमारा लोड एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, या फिर हम एक यूनिट और लेंगे। ठीक है, तो इन द sequential sampling plan the sample size is not very fixed as in the case of single sampling plan or double or multiple sampling plan. The units items are drawn the lot one at a time and inspected. एक यूनिट निकालेंगे, पहले उसका इंस्पेक्शन करेंगे, फिर the decision about the acceptance rejection of the lot or continuing with the inspection by taking one more unit from the lot is made on the basis of the information available up to that stage. वो जो स्टेज है जहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं, या पहले ही सैंपल पे, मान ली पहले यूनिट पे हम डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका रिजल्ट बताएगा कि हम लोड को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस होते। चलिए, continuous production acceptance sampling plan for attributes are used when the units or items to be inspected cannot be grouped into the lot or batches. Many manufacturing operations do not create lots because in these operations the units are production in continuous process or conveyor belt or other state line system. तो जहाँ पे हम लोग लॉट नहीं बना पा रहे, तो वहाँ पे ये यूज करते हैं continuous production acceptance sampling plan. कोई है ऐसा एग्जांपल जहाँ पे आप लॉट नहीं बना पाते? कोई बताएगा? नहीं, चलो फिर सोचना अपने आप। यस, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर वेरिएबल्स मैंने बता ही दिया है कि जहाँ पे हम एक्चुअल मेजरमेंट लेंगे इंस्पेक्शन के लिए, तो वहाँ पे हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर वेरिएबल्स यूज करेंगे। ये भी आपके कोर्स में नहीं, देखिए बहुत इजी है। यस, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ केक आएगा सर कंटिन्यूअस में? प्रोडक्शन ऑफ केक इन अ बेकरी? बेकरी में नहीं, बेकरी में भी हम लोड बना सकते हैं। मान लीजिए, देखा आपने, देखा होगा जैसे ब्रेड बनती है ना, तो ब्रेड को उन्होंने क्या पैकेट बना लिया और एक एक उसमें 50 ब्रेड्स रख ली, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। चलिए सोचना। इंडिविजुअल केक? इंडिविजुअल केक में भी शायद बन जाएगा, आई थिंक सो। ओके, थैंक यू सर। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स। अब ठीक है, हमने क्योंकि कहा कि हमारे पास एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉर वेरिएबल्स तो नहीं है, तो खाली एट्रीब्यूट्स है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे हम इसको अगर हमें कहीं पे करना है तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान तो कैसे करेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं इसमें, ये बहुत इजी है और इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो बहुत इजीली इसमें, और एक देखिए, तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, उसके तो क्वेश्चन में टाइम लगता है आपके, क्योंकि मैंने कहा था कि MST E001 और 2 में टाइम को भी आपको देखना पड़ेगा, टाइम कंस्ट्रेंट वहाँ पे रहता है, 3 आवर्स हमें कम पड़ते हैं, तो हमें चूज करना होता है ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम कम लगे और मार्क्स पूरे मिल जाए। तो ये ब्लॉक उनमें से ही है जिसमें टाइम कम लगेगा और मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है और ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता इसका। ठीक है, चलिए, तो क्या अगर हमें कोई लोड एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, तो किस तरह से करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो लोड है उसका साइज है n। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने सैंपल ही लेना है, क्योंकि आप सैंपल के बेस पे उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हो। पहला स्टेप क्या है, फिर ड्रॉ ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम द लॉट रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर और द फाइनल असेंबली। ठीक है, फाइनल असेंबली यहाँ पे ये यूज किया है इन्होंने कि बाय द वे मैं खुद अपना लोड, मेरा आइटम्स बन गए हैं और मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं अपने चेक तो करूँ एक बार कि क्या उसकी क्वालिटी बनी है, क्या वो स्पेसिफिकेशन फुलफिल कर रहा है, कर रहा, कितने परसेंट में डिफेक्टिव बने हैं। इधर मैंने वो अपना प्रोसेस तो कंट्रोल कर लिया था, पर फिर भी लोड बनने के बाद हम खुद लोग मैन्युफैक्चरर खुद चेक करता है कि भाई हमारा लोड की क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पे इसलिए हमने यूज किया था फाइनल असेंबली, या फिर हम किसी दूसरे से अगर बाय द वे कुछ यूनिट परचेज कर रहे हैं तब हम सप्लायर से लेंगे। ठीक है, तो फिर अब आपने एक सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद क्या करना होगा, हमें उस लोड हब जितने भी सैंपल में यूनिट कलेक्ट हुई है, देन वी इंस्पेक्ट ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द सैंपल एंड क्लासिफाई इट एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। जो भी हमने क्राइटेरिया रखा होगा कि भाई हमें इसमें, मान ली क्रिकेट बॉल का ही है, हमें इसमें मेनली क्या चेक करना है कि क्रिकेट बॉल हमारा
जिसे हम कैटेगराइज कर सके कि क्रिकेट बॉल हमारी डिफेक्टिव है कि नॉन डिफेक्टिव। एट द एंड ऑफ द इंस्पेक्शन वी काउंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स फाउंड इन द सैंपल। फिर हमने ये सब चेक कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया उसका एट्रीब्यूट्स के थ्रू, और फिर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स कि कितना टोटल डिफेक्टिव यूनिट बनी। फिर हम क्या करेंगे, वी कंपेयर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट फाउंड इन द सैंपल विद द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि जो हमारा सप्लायर है और जो कंज्यूमर है, यानी जो सप्लाई कर रहा है और जो उसको ले रहा है, वो दोनों मिलके नेगोशिएट करके एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं कि अगर बाय द वे मेरे सैंपल लेने के बाद मान लीजिए 2 डिफेक्टिव आते हैं तो मैं लोड को एक्सेप्ट कर लूंगा, अदरवाइज लोड को रिजेक्ट कर दूंगा। तो फिर जो नंबर हमारे पास डिफेक्टिव आते हैं तो वी कंपेयर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स यूनिट इन द सैंपल विद द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उससे हम उसकी कंपेयर करेंगे। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है कि भाई 2 से कम थे तो हम लोड को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज वी रिजेक्ट द एंटायर लोड। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हुआ, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, ऐसे ही हम लोग करते भी हैं। अब इसको एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। पहले एक हमने एन लोड, हमारे पास एन साइज का लोड आया, हमने उसमें एक सैंपल लिया, फिर उसको हमने इंस्पेक्ट किया एचएमडी यूनिट को, फिर हमने नंबर डिफेक्ट काउंट कर लिए, फिर हमने कंपेयर करा जो हमारा क्राइटेरिया था। अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो हम लोड को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता हम लोड को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपल है, इसमें तो मुझे जरूरत नहीं है। नाउ टर्म यूज इन एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लान्स, क्या क्या टर्म्स हमारी यूज होंगी। तो पहले तो लोड की बात होती है, लोड चल रहा था, तो लोड क्या है? A lot is a collection of units or items from which a sample is taken and inspected to determine its acceptability. तो लोड क्या है? कलेक्शन है आइटम्स का जिसके अंदर से हम सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म, देखिए अब हमें सैंपल लेना है तो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस, ऐसा नहीं कि जो लोड है उसमें से आपने कहीं तो अच्छा आइटम रख दिया, कहीं पे बेकार आइटम रख दिए। तो लोड क्या होना चाहिए? वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना, और होमोजीनियस होना चाहिए, और ऐसा लोड बनना चाहिए जिसकी पैकिंग आराम से हो सकते हो, शिपिंग कॉस्ट उसकी ज्यादा ना हो, हैंडलिंग रिस्क एज मिनिमम होनी चाहिए। तो इस तरह से लोड बनाया जाता है। फिर आता है सेकंड वर्ड है सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग का मतलब है द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एंटायर लोड इज कॉल्ड द सेंटेंसिंग। मतलब लोड को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना इज कॉल्ड द सेंटेंसिंग। लोड साइज, जो लोड हम रिसीव कर रहे हैं उसके साइज को कहेंगे हम लोड साइज। सैंपल साइज, जितना हम सैंपल ले रहे हैं, जितने साइज का हम सैंपल ले रहे हैं कॉल सैंपल साइज। लोड क्वालिटी यहाँ पे डिफाइन होती है नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इन ए लॉट अपॉन लोड साइज। मतलब एक लोड क्वालिटी हमेशा इंडिकेट करेगी कि लोड कितना मतलब लोड में कितने परसेंट डिफेक्टिव है। ये कभी ये इंडिकेट नहीं करती कि लोड में कितने नॉन डिफेक्टिव है, ये हमेशा ये इंडिकेट करेगा कि लोड में कितने डिफेक्टिव है। सेम हमने यूज किया था जब हमने चार्ट बनाए थे पी की वैल्यू। अब आता है एक्सेप्टेंस नंबर। एक्सेप्टेंस नंबर क्या है? When a deal is finalized between a seller and a buyer, they decide on the maximum number of allowable defective units in a sample. तो कर दिया तो क्या कर सकते हैं? तो मत करो ना, ये तो मैंने अनेक बार बोली थी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग। तो ये सब ठीक करेगा। ठीक है, नहीं बोलो, उसको ले जाओ 14 में वो पोंछ लो, वहां पे जाके रख दो। Yes, just yes, when a deal is finalized between a seller and a buyer, they decide on the maximum number of allowable defective unit in the sample. तो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें कितना allowable defective units रखनी है सैंपल में। Yeah, the rule, this number is called acceptance number and it is noted by C. The rule for acceptance or rejection of the lot is that the number of defective units observed in the sample is less than or equal to the acceptance number, the lot will be accepted, otherwise lot will be rejected. It means that एक नंबर डिसाइड कर ले दोनों ने मिलके, अगर उससे ज्यादा डिफेक्टिव यूनिट्स आती हैं तो हम लोड को रिजेक्ट कर देंगे, अगर उससे कम आती है तो हम लोड को एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए अब इन्हीं सभी को हम एक बार डेफिनेशन को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। Suppose a cricket ball manufacturing company supplies lots of 500 balls. To check the quality of the lots,
a buyer draws a random sample of size 20 balls. ठीक है, 500 का सप्लाई कर रहा है, लोट का साइज 500 है और वो उसे सैंपल लेना है 20 का. And accept the load if the inspected sample contains at most one defective ball. अगर हम 20 का सैंपल लेते हैं, अगर उसमें से एक डिफेक्टिव बॉल आती है, एट मोस्ट ज्यादा एक डिफेक्टिव बॉल आती है, तब भी हम उसको रिजेक्ट करेंगे. अदरवाइज 2 बॉल आई 3 बॉल आई तो हम लोड को रिजेक्ट कर देंगे. अदरवाइज ही और सी रिजेक्ट द लोड. इफ द लोड कंसिस्ट ऑफ 10 डिफेक्टिव बॉल्स, यानी 500 में से 500 में से कितनी बॉल डिफेक्टिव है, 10 बॉल डिफेक्टिव है. फाइंड एन, capital N, small n, P and C. तो capital N is the load size and load size is the 500. तो capital N तो हो गया हमारा 500. small n पे आते हैं. small n is the sample size. Sample size is 20. P is the load quality. Load quality is the number of defective balls upon the load size. तो defective balls कितना है? Defective balls हैं 10 और load size कितने का है? 500. तो this is 10 upon 500. तो load quality आ गई 0.02. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 2% हमारे डिफेक्टिव बॉल्स हैं. यस. फिर आता है सी. सी इज द एक्सेप्टेंस नंबर. तो कब हम लोड को कब एक्सेप्ट कर रहे हैं? लोड को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जब हमारे पास मैक्सिमम 1 वोल्ट डिफेक्टिव. तो सो सी इज इक्वल टू हो गया हमारा 1. वेरी सी. यस, सी इज इक्वल टू 1. तो इजी है, ये सब हम टर्मिनोलॉजी बार बार यूज करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में कराया गया है. ये ओके. नाउ आगे लेते हैं हम लोग. यस. नाउ वी लर्न अबाउट द सच लोड क्वालिटी. ये now how can we confident that a good lot of the quality will be accepted and a bad lot will be rejected. कैसे जज करें कि भाई ठीक है सैंपल के बेस पे ले रहे हैं, तो सैंपल के बेस पे तो हो सकता है कि मिसलीडिंग, मतलब हम लोग गलत डिसीजन ले लें. तो कैसे इंश्योर करेंगे कि हम हमारे पास एक जो लोट आया है वो अच्छी क्वालिटी का आया है. तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं, कॉन्फिडेंट की बात करते हैं, तो वहां यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट यूज करेंगे. शायद टाइम पूरा होने वाला है, तो मैं एंड कर रहा हूँ और आप प्लीज जल्दी जल्दी आप लॉग इन कर लीजिएगा.